हाय बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस lecture we'll be discuss about the proving of irrational number. So let us start. Suppose you have to prove any irrational number like this: root 2, root 3, root 5 and so on. So first step is you have to assume root 2 is equal to P by Q. Clear? Where P by Q is a rational number and P and Q are integer. Where P and Q are integer. Clear? So after doing this, we'll be do the square of both sides. Squaring both side. Clear? It is root 2 square is equal to P upon Q square. So it will be 2 is equal to P square upon Q square. After doing this process, 2 will be go in the denominator and 2 will be come here. It means 2 into Q square is equal to P square. So Q square is equal to P square by 2. You have to do this process. After doing this process, we see here it means to divide, because 2 is in denominator of P square, so 2 divides P square or P. Clear? First step is completed. Now we have to do second step. In second step, at the place of P we put 2k. Clear? Always remember which you have to prove, just like you have to prove root 2. So will be put at the place of P square 2k. Clear? So putting P is equal to 2k in equation first. In this equation, at the place of P will be put 2k. So it will be Q square is equal to, at the place of 2p, it means 2k whole square by 2. So it will be 4k square by 2 equal to Q square. So it will be cancelled. Now see here. It means Q square is equal to 2k square. So this 2 will become in the denominator of Q square. It means Q square by 2 is equal to K square. Now we see 2 divides here. 2 divide Q square or Q. Okay? So we see in first equation 2 divides P square or P, and equation second 2 divides Q square or Q. So 2 is a factor and it is a rational number. Clear? We know that 2 divides P square in equation first and 2 divides Q square, and P and Q are integer. If 2 divides P and Q, so 2 is a factor in both and it will be a rational number. But
our contradiction is fail. Is fail. So root 2 is an irrational number. How it is fail? See, we know that 2 is equal to p square by q square. Clear? Like this. So p and q are a rational number. It is also a rational number. But when will we remove p square and q square? So it always become in root. It means p by q is equal to root 2, which is irrational number. It means it is a rational number, but it is irrational number, and we know that rational number is not equal to irrational number, or irrational number is not equal to rational number. So our contradiction is fail, and it is a irrational number. Now we will take one example from NCERT book, exercise 1.3. Prove that, question number first. Prove that root 5 is an irrational number. Irrational number. Now see, first step is it that will assume root 5 is equal to p by q. Solution. Let root 5 is equal to p by q, where p and q are integer. Clear? After doing this, we have to do the square of both sides, squaring both sides. So it will be root 5 square, and it will be p by q whole square. It will be 5 is equal to p square by q square. Now it was numerator, it was denominator, so 5 will be come in denominator and q will be come here at the place of 5. It means q square is equal to p square by 5. Now it is equation first, and it means 5 divides p square or p. We write here. Here 5 divide p square or p. Clear? Now we see we have to prove root 5. So at the place of p square in equation first will be put 5k. Clear? Which we have to prove, we have to put the same value at the place of p square. So in this equation we have to prove root 5, so we can be put here 5k in equation first. We put 5k at the place of p. So it will be q square is equal to, at the place of p it will be put 5k, so it will be 5k whole square upon 5. It means q square is equal to, it means 25
k square by 5. This will be cancelled. Q square is equal to 5k. So 5 will be come in the denominator of q. It means q square by 5 is equal to k. Clear? So 5 divides q square. Here 5 divide q square or q. 5 divides q square or q. Clear? It is the equation second. So 5 is a factor of q. 5 is a factor of q. And here in equation first, 5 is a factor of p. Factor of p. We see here. From equation first and second, we see 5 is a factor of p and q. So it is a rational number. But always you have to write, but our assumption is false. So root 5 is an irrational number. Always you have to write this, but our assumption is false or our contradiction is failed, so it is an irrational number. We know that because it is 5 is factor in p and q, because it's divide p square and q square, so it is a factor in both and it is a rational number. But we know that a rational number cannot be equal to any rational number. Like this, if it is 5 is equal to p square by q square, so 5 we can write 5 by 1, it is a rational number. But when will we remove this square, it means it always become in the root p by q. And we know that it is a rational number and it is irrational number. A rational number cannot be equal to irrational number, or a rational number cannot be equal to a rational number. So our contradiction is failed. Yeah, our assumption is failed. So we can prove any number, root 3, root 7, root 11 using this method. Now will we do other example? Exercise 1.3. Now suppose you have to prove that question number second from NCERT, exercise 1.3. Prove that 3 plus 2 root 5 is an irrational number. Now see solution. Let 3 plus 2 root 5 is equal to p by q. Always will be right, where p and q are integer and p by q is a rational number. First will be choose equal to a rational number where p and q are integer, where p and q are integer. So it is a real number, will be removed in right side. It means 2 root 5 is equal to p by q, and when it will become here
the sign will be changed. It means p by q minus 3. And we know that it is 2 into root 5. So we can write here root 5 is equal to, it will become, in this side it will be 1 by 2 into, inside the bracket, p by q minus 3. Now see, in this equation we see after equal sign in the right side it is rational number, clear, and it is irrational number because it is inside the bracket, it will not come out the bracket, clear, and it is in the form of p by q, clear. It is a rational number, it is irrational number. We see here root 5 is an irrational number, and 1 by 2 p by q minus 3 is a rational number. Left hand side is irrational number, right hand side is rational number. And we know that an irrational number never equal to a rational number, clear. We know that. So it is clear or not? It is irrational number, it is rational number. Irrational number never equal to a rational number. So given statement, it means 3 plus 2 root 5 is an irrational number. क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है। एक तो तरीका एक और है, लेकिन ये सिंपल तरीका, इसके द्वारा हम कर सकते हैं। एक स्क्वायर करके करते हैं, वो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन अभी इसको समझो। क्लियर? उसको भी हम बता देंगे। नेक्स्ट विल वी टेक अदर एग्जांपल। प्रूफ 7 root 5 is an irrational number. Now see solution. Let 7 root 5 is equal to p by q, where p and q are integer. P and q are integer. Now see, we can write this root 5 is equal to p by, it will become in the denominator, it means cross multiply 7q. Clear? And we see now p by 7q is a rational number, and root 5 is an irrational number. So we know that an irrational number is not equal to a rational number. So given statement means 7 root 5 is an irrational number. क्लियर? इसको सबसे पहले हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, जहां p और q एक इंटीजर है। इसके बाद जो भी हमारा रेशनल नंबर का फॉर्म होगा उसको हम एक तरफ रखेंगे, इरेशनल नंबर को एक तरफ रखेंगे। जैसे रूट 5 था, रूट 5 हमने यहाँ पे रखा और 7 इसके डिनोमिनेटर में गई। ये पूरा हमारा रेशनल नंबर हो गया, और ये क्या इरेशनल नंबर, बिकॉज इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये नहीं है, और ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। तो हम ये देख रहे हैं इससे कि कभी भी
रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं होता। यहाँ पे √5 और यहाँ पे दिया गया स्टेटमेंट है √5 = p/q, p/q के फॉर्म में है ये, p/7q, इसका मतलब p/q के फॉर्म में है। तो रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर दे रहा है, जो कि हमारा कंट्राडिक्शन फेल हो गया है ना। जो फेल हो गया इसका मतलब ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। इसी तरह प्रूविंग। क्लियर? नाउ विल बी सी नेक्स्ट स्टेप। Exercise 1.4. First I will be clear the concept. ओके बेटा, 9th क्लास में इसको मैंने बताया था रेशनल नंबर। ठीक है ना। रेशनल नंबर क्या होता है, इसको एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं। इट कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q where q is not equal to 0। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट ये था। दूसरा इसका था इट इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मीन्स जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए, यानी वो पूरा पूरा कट जाए। ठीक है ना। और थर्ड स्टेप है इसका इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब यानी टर्मिनेट ना हो, इसका रिमाइंडर 0 ना हो, लेकिन क्वोटेंट एक इंटरवल के बाद वो रिपीट करे। तो ये इसका थर्ड स्टेप है। और चौथा इसका था इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हम इतना लिख रहे हैं, ये याद रख लेना। इस वाले एक्सरसाइज में क्या है, जब जो भी रेशनल नंबर है अगर वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट, अगर रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग, अगर मतलब टर्मिनेटिंग कब होगा, जब उसका रिमाइंडर 0 हो। तो वो किस फॉर्म में होगा, उसको ध्यान दो। ये 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में होगा। इसी कॉन्सेप्ट का इसमें यूज किया गया। क्लियर? यानी जब वो टर्मिनेटिंग होगा तो 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n एक्सपोनेंट के फॉर्म में होगा, तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। और यही कॉन्सेप्ट जो है इसमें अप्लाई किया गया इस एक्सरसाइज में। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें पूछ रहा है कि जो है बिना उसको जो है डिवाइड किए ये बताओ कि कौन सा फॉलोइंग रेशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। जैसे पहला एग्जांपल, अब इसको कॉन्सेप्ट पहले ध्यान से देखो बेटा। पहला 13/3125 है ना। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझो, इसमें क्या है, इसको हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। अब इसको तो ऐसे डिवाइड करोगे तो बहुत लंबा होगा, तो उसका कॉन्सेप्ट समझो। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है, इसका जो डिनोमिनेटर है इस फॉर्म में हम इसको करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको फैक्टर करो। ये क्या है 3125, देखो 5 से कट गया, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 1 5, 5 2 10, 5 5 20, फिर 5 से 5 2 10, 5 5 20, फिर 5 से 1। तो अब हम ये देख रहे हैं क्या है 5 5 5 5 5 है ना। इसको हम यहां पे लिखेंगे 13/5 पे पावर कितना 1 2 3 4 5 हो गया। कॉन्सेप्ट समझो।
तो जो भी डिनोमिनेटर होगा हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर यहां पे नीचे डिनोमिनेटर में 5 पे पावर ये आ रहा है, जैसे 5 पे पावर n का फॉर्म आया, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या करना है, टर्मिनेटिंग बनाने के लिए 2 पे पावर m से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? देखो अब यहां पर 5 पे पावर 5 है, तो यहां पे इसको 10 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यानी डिनोमिनेटर में अगर हम 2 पे पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी 2 पे पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, तो 5 2 10 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 2 पे पावर 5 यानी 30, 2 2 4 2 8, 2 2 8, 32 2 4, ठीक है, ये 64 हो गया, नहीं 64 नहीं 32, ठीक है। और यहां पर देखो 5 2 10 हो गया, और इन दोनों के पावर क्या था 5 था। इसको हम क्या लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे 13 इंटू 32 अपॉन, इसको हम क्योंकि एक्सपोनेंट दोनों इक्वल है तो 5 इंटू 2 पे पावर 5 लिख सकते थे, ठीक है। तो अब ये हमारा इतना हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई अगर करना चाहो, लेकिन ये केवल इतना पूछा जा रहा है कि इसमें किस टाइप्स का है, तो हमने ये देख लिया नीचे डिनोमिनेटर क्या है, 10 के पावर के फॉर्म में आ गया। हमें डिनोमिनेटर को 10 के फॉर्म में ही बनाना है, 10 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में बनाना है। उसी की वजह से हम उसको फैक्टर करके, अगर यहाँ 2 पे पावर 5 होता तो 5 पे पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता, ठीक है ना, डिनोमिनेटर 10 बनाने के लिए, 10 के एक्सपोनेंट के बनाने के लिए, ठीक है। तो अब ये हमारा कौन सा आ रहा है, ये टर्मिनेटिंग आ रहा है। पहले इस पूरे एक्सरसाइज में क्वेश्चन ऑफ पहले में यही पूछ रहे किस टाइप्स का है, तो ये आ गया हमारा टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। और इसी पहले में जितना सब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पूछ रहा है, ठीक। दूसरा, इसी का जब दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था। वैल्यू कैसे होगी, इसको मल्टीप्लाई करो अपॉन 10 पे पावर 5, तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, ये 1 2 3 2 जीरो इधर लग जाएगा, 1 2 4 1 6, ये हो गया डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है। इन 10 पे पावर 5 था, 1 2 3 4 5 के बाद इसको पॉइंट लगा देंगे, ये टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट विल बी टेक सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज 17/8। इसको चेक करो ये क्या है। वी नो दैट इट इज 17। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3। अगर 8 को हम फैक्टर करते हैं तो इट मीन्स 2 4 2, इट मीन्स 2 पे पावर 3। ये 2 के फॉर्म में है, इसका मतलब हमें क्या लाना है, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में। अगर ये 2 के पावर n के फॉर्म में है तो अब इसको हमें 10 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, 5 पे पावर, क्योंकि पावर 3 है, 10 कब होगा, जब 5 पे पावर यहाँ 3 है, तभी तो ये कॉमन हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। और जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो ये हमारा कितना हो गया, 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 125 अपॉन, अब यहां पे देखो 2 5 z 10 हो गया, उस पूरे के पावर 3। अगर यहां समझ में नहीं आता तो यहां पे देखो 17 इंटू 125 अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, पूरे के पावर अगर 3 है तभी तो ये 2 के पावर 3 होगा और 5 पे पावर 3 होगा, ठीक है ना। तो अब यहां पे हम इसको लिख सकते हैं 1000, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे मल्टीप्लाई करो और तुरंत पॉइंट लगा दो। 75 से 85 के 5, 8 कैरी, 17 2 से 34, 2 4 कैरी, 17 1 से 17 and 4 21, clear। 1 2 3 there are 3 digits, so we can be write a point 2। लेकिन हुआ कैसा, ये किस फॉर्म में है, इसका मतलब ये है टर्मिनेटिंग, क्लियर। नेक्स्ट
विल बी टेक अदर एग्जांपल लाइक क्वेश्चन नंबर 7 इसी का. इट इज 129 अपॉन 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 7 इंटू 7 पे पावर 5. अब इस वाले क्वेश्चन को समझो बेटा. डिनोमिनेटर में हम ये चेक करें, यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, 5 पे पावर 7 है. इन दो डिजिट के अलावा अगर कोई भी डिजिट आ जाता है एक्सपोनेंट के पावर में या न भी पावर में रहे, ठीक है ना, तो वो कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा. क्लियर है ना. तो यहाँ पे 2 के पावर 2 है, 5 पे पावर 7 है, ये तो मतलब हम इसको कर सकते थे. लेकिन यहाँ 7 पे पावर 5 है, यानी दो डिजिट के अलावा अगर कोई भी डिजिट आ जाता है तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. you can write here. Clear? Next. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इसी का पहले का है. 35 अपॉन 50. इसको भी चेक करो कैसा है. इसको हम क्या लिख सकते हैं, 35 50 को अगर हम फैक्टर करते हैं 2 25 5 5 1. इसको 2 इंटू 5 पे पावर 2, इट मीन्स 2 5 5 2 टाइम्स वी कैन राइट हियर. क्लियर. सो अब इसको चेक करो, बनाओ 2 के पावर n इंटू 5 पे पावर n के पावर में. तो अगर हम यहां पे देखते हैं 2 के पावर 1 है ना, तो इसको बनाने के लिए 10 किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 35. इसका मतलब 2 पे पावर 1 था, अगर 5 पे पावर 1 से मल्टीप्लाई हम नीचे करते तो ऊपर भी करना पड़ेगा. क्लियर. ऊपर भी हमने कर दिया 5 पे पावर 1 से. ठीक. अब यहां पे देखो डिनोमिनेटर में ये भी तो था, है ना, 5 पे पावर 2 था, 5 पे पावर 2 था. तो इसको अगर बनाना है 10 तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 पे पावर 2 से करना पड़ेगा, और इसी 2 के पावर 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्लियर. अब देखो कॉन्सेप्ट. सो इट विल बी 35 इंटू 4 5 20 अपॉन इट इज 10. इट इज 5 2 10, इसके पावर 2, ये पावर 2 था, इतना हो गया. तो इसको थोड़ा सा इधर देखते हैं. 35 2 70 है ना, 35 2 70 700 अपॉन यहाँ पे 10 के पावर 1 हो गया और 10 के पावर 2, इसका मतलब 10 के पावर 3. ठीक है, 10 के पावर 3 हो गया, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है. सो वी कैन राइट 8.700. इट इज टर्मिनेटिंग. इट्स योर आंसर. नेक्स्ट. In this question number 3rd. Question number 3rd. The following real number have decimal expression as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form of p by q, what can you say the prime factor of? ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, सिंपल सा तरीका अभी बताया था. इसको देख लो एक बार, एक एग्जांपल लेकर के हम देखते हैं. जैसे उसको क्वेश्चन लिखने में तो टाइम लगेगा, इसको एनसीईआरटी बुक से देख लेना, ठीक है, उसमें डाउनलोड करके. चलो क्वेश्चन हम लेते हैं. इसमें ये कह रहा है कि जैसे पहला क्वेश्चन ठीक है, फर्स्ट 43.1234567
89. It is given 43.12345678 ऑलवेज रिमेंबर, अगर इस टाइप्स के एक्सप्रेशन में ये वाली चीज न लगी हो, ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं लगा। क्लियर? तो ये हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सो वी कैन राइट इट, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये डेसिमल के फॉर्म में टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर? एंड इट कैन बी राइट in the form of p by q। इसको p by q के फॉर्म में भी लिखा जाएगा। इट इज नोमिनेटर एंड इट इज डिनोमिनेटर, ठीक है, वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 और एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, किस फॉर्म का होगा, will be the form of, अभी बताया था हमने, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, ठीक है ना। अभी हमने बताया था जब ये डेसिमल एक्सप्रेशन होगा तो इसका मतलब ये डिनोमिनेटर का जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, 2 पे पावर m एंड 5 पे पावर n के फॉर्म में हमेशा होगा, यानी वो डिवाइड करेगा तभी तो पॉइंट लगेगा, है ना। तो ये हमारा आंसर है। इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब इसको बताना है कि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। 0.1201 200 12000 12 एंड सो। इसको बताना ये जो है कौन सा टर्मिनेटिंग है कि नहीं। वी सी हियर पॉइंट के बाद 120 120 था, इसके बाद ये 0 डबल बार हो गया, फिर 0 ट्रिपल बार हो गया, तो ये और यहां पे ये दिया गया ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग not repeating। क्लियर? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉट रिपीटिंग है, सो इट इज एन इरेशनल नंबर। Irrational number। In 9th class already I told you about the irrational number। I'll repeat again। A number may be a irrational number which is not a perfect square, first concept, which is non-terminating, not repeating, which is this। Clear? And it is non-terminating, not repeating, it is not a perfect square, and it cannot be written in the form of p by q। So see, it is an irrational number। ये कैसा है, irrational number, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉट रिपीटिंग है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 0 के बाद 1 2 00 हो गया, 1 2 000, ये रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि डिजिट एक इंटरवल रिपीट होना चाहिए रेशनल नंबर के लिए। अगर वो इंटरवल रिपीट नहीं हो रहा है तो वो इरेशनल नंबर हो गया। जब ये हो गया तो इसका, सो इट्स डिनोमिनेटर is not the form of 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m। वो इसके फॉर्म का भी नहीं होगा। हाँ, इसमें कुछ हो सकता है, कोई इसके अलावा कोई दूसरी डिजिट हो सकती है, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसका एक थर्ड ऊपर देखते हैं। No, see. Last question. Third. 43
point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and it is bar. What is this? This is a rational number. It is non-terminating but repeating after an interval 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. It's repeat, so it is repeating, non-terminating but repeating. Okay, so it can be write in the form of P by Q. Clear? And denominator will be a form of 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n. एक चीज हमें से याद रखो, 2 पे पावर m इंटू 5 पे, अगर इसको इसके अलावा कुछ एक दूसरी डिजिट होगी, कुछ भी हम ले सकते हैं एक नंबर, है ना, तभी वो रिपीट करेगा. नहीं तो अगर ये 10 के फॉर्म में तो तुरंत डिवाइड कर टर्मिनेटिंग हो जाएगा. ऑलवेज रिमेंबर. इसमें क्या होगा, ये इसका डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होगा, लेकिन वो एक डिफिनिट इंटरवल के बाद रिपीट करना चाहिए. तो इसके बाद कुछ एक ऐसा नंबर जरूर भी हो सकता है, जैसे 3 हो गया, और वो क्या करेगा, उसको डिवाइड कर सकता है. ठीक है ना. तो ये क्या होगा, इस फॉर्म के ऊपर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n इंटू कोई एक नंबर, इसके अलावा वो क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, एक डिफिनिट इंटरवल के बाद वो उसको रिपीट करेगा. फॉर एग्जाम्पल हम इसी तरह और ले लेते हैं. किस तरह का नंबर हो सकता है, जैसे 1/3, ये भी हो सकता है ना. तो 1/3 क्या है, ये रिपीट कर रहा है 0.333. इट विल, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इट विल नॉट बी ए फॉर्म. यहाँ पे नॉट बी ए फॉर्म इतना, ये केवल इस फॉर्म का नहीं होगा, इसके अलावा दूसरे फॉर्म का हो गया. थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था. ठीक है ना. जैसे ये 3 था, तो ये रिपीट कर रहा है ना कि इंटरवल के बाद 0.333 एंड सो ऑन. सो यूजिंग दिस मेथड you can find terminating, non-terminating decimal and tell the factor of the denominator of the form of 2 पे power m and 5 पे power n. So you have to complete this chapter in your copy. That's all for today. Next day we'll be start a new chapter. Thank you, beta.